Hello, my dear students. Welcome to the next revision class of income tax. Okay? Yes. Now, my dear students, income tax revision. When we speak about income tax revision, my dear students, the most important thing that we always consider are the 5 heads of income. Okay? हमने basic taxability देखा, basic tax rates देखा, then we saw the important chapter residential status. Why do I say that residential status is going to be a very important chapter for your attempt? Because there are some major amendments, my dear students, which has taken place in case of residential status. A few really important amendments have happened in this particular chapter. Okay, yes, so we are done with residential status and I hope you have no problems with it. Further, we are going to go ahead with the first head, that is first head of income, that is income under the head house property. Okay, yes, my dear students, when we say income under the head house properties, when we say income under the head house property, what are the sections that we shall be covering of the Income Tax Act? When the journey of house property begins from section 22 to 27, section 22 to section 27, and obviously the very first section is always a charging section. Okay, see, I've muted you, all of you, and मेरे यहाँ पे speaker बंद है, so if you have anything to say, please pass me a comment. Okay, please type a comment in the chat box so that I can read the comment and then go ahead. I think Manisha has something to say. Further, let's continue something. Okay, now when we say the charging section of house property, it is always section 22. The first section is always considered as the charging section, my dear students. Okay, what does section 22 say? Section 22 says that, okay, पहले तो charging section में जाने से पहले एक समझ लीजिए, आपके पास जब कोई घर होगा तो आप उस घर के साथ क्या कर सकते हैं? जैसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, रहा जाए या रेंट पे दिया जाए, बेचा जाए या गिफ्ट दिया जाए. वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू हैव अ हाउस, आप उसके साथ क्या कर सकते हो? आइदर आप खुद रह सकते हो या किसी को रेंट पे दे सकते हो. आइदर या आप उसको बेच सकते हो या उधर खुद का बिजनेस कर सकते हो या उसको क्या कर सकते हो? किसी को गिफ्ट में दे सकते हो. अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्कोप, द कवरेज ऑफ सेक्शन 22, माय डियर स्टूडेंट्स. अगर आप खुद रहते हो या किसी को रेंट पे देते हो, देन इट इज कवर्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी. अगर आप खुद उसमें बिजनेस और प्रोफेशन करते हो, इट इज कवर्ड अंडर पीजीबीपी. अगर आप घर बेचते हो, देन इट इज कवर्ड अंडर व्हाट? इट इज कवर्ड, अगर आपका बिजनेस है घर बेचने का, देन इट विल बी कवर्ड अंडर पीजीबीपी. इफ यू आर सेलिंग इट एज कैपिटल एसेट, then it will be covered under capital gain. अगर आप किसी को गिफ्ट में देते हो, okay, my dear students, then it will be covered under income from other sources. Right? तो एक घर के साथ इतना सब कुछ हो सकता है. So let's see what is covered under that house property. Okay, section 22, my dear students, has 3 conditions. First, there must be a house property. Assessee must be the owner of this house property. And assessee should not do his own profession or business in this particular house property. When we say there must be a house property, क्या होना चाहिए? It must be building or building and land appurtenant thereto. Okay. Now what is meant by building or land appurtenant thereto? एक building है और उसके आजू बाजू थोड़ी सी open land है, जैसे parking space, garden, right? ये क्यों दिया जाता है? In order to make the best utilization of the house, of the particular building. Okay, do you get it? मतलब अगर vacant plot होगा, will be considered as house property? No, my dear students. If it is land and building, will it be covered under house property? No, only building plus land is covered under house property, my dear students. Okay, then the next most important part is assessee must be the owner. Assessee must be the owner, my dear students. But here, when we say assessee must be the owner, registration of sale deed is not warranted. Registration नहीं हुआ है, पर अगर आपने possession दे दिया है, सामने वाला उस property को, house property को क्या कर रहा है? Utilize कर रहा है. In that case, it will be treated as assessee is the owner. That particular person will be treated as the owner. अगर आप किसी को लीज पे देते हो, तो जिसको आपने लीज पे दिया वो ओनर बन जाएगा. ओके, अब कौन से साल में आपकी ओनरशिप होनी चाहिए? कौन से साल में आपकी ओनरशिप होनी चाहिए? ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस साल अगर आपको, लिसन टू मी माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक घर है तो और अगर इस साल आप उसके ओनर हो, मतलब क्या, मेरा कहने का मतलब क्या, अगर मैंने इस साल उस हाउस प्रॉपर्टी को खरीदा और मुझे रेंट मिल रहा है 5 लाख,
ओके और अगले साल मैंने उसको बेच दिया, मतलब क्या, इन द प्रीवियस ईयर आई एम ओनिंग द एसेट हाउस प्रॉपर्टी, बट इन द असेसमेंट ईयर आई हैव सोल्ड दैट पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी. ओके, सी अंडरस्टैंड, हियर इनकम मस्ट बी अर्न्ड इन द प्रीवियस ईयर. असेसमेंट ईयर का रेलेवेंस इज ओनली एंड ओनली फॉर टैक्स कैलकुलेशन पर्पजेस. सो असेसमेंट ईयर में आप ओनर थे कि नहीं ये फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, पीवाई देखेंगे. हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या हुआ है. सो इफ प्रीवियस ईयर में माय डियर स्टूडेंट्स, if in the previous year assessee is the owner, rent would be taxable in the hands of the assessee. Okay, yes. अब आगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर मेरे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है माय डियर स्टूडेंट्स, और अगर मैंने वो किसी को रेंट पे दिया, सो दैट इज नोन एज लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. बराबर है, मैंने हाउस प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दिया, ओके मुझे रेंट आ रहा है, देन दिस पर्टिकुलर इज एक्टिविटी इज नोन एज लेटिंग आउट. किसी को रेंट पे देना मतलब लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इट विल बी कवर्ड अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. पर अगर मैंने जिसको भाड़े पे दिया उसने आगे वो चीज रेंट पे दी, उसने आगे वो हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दी, देन इट इज नोन एज सबलेटिंग. It is known as subletting of house property, and subletting of house property is not covered here. क्यों? क्योंकि मैंने जब किसी को रेंट पे दिया तो आई एम द ओनर, वो टेनेंट हो गया. जब टेनेंट ने वो आगे किसी को रेंट पे दिया तो टेनेंट ओनर है क्या? नहीं. तो ओनरशिप का कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देयर, इसलिए लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज कवर्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी, बट सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. आगे माय डियर स्टूडेंट्स, अगर डिस्प्यूटेड ओनरशिप है, दो भाई हैं, ओके दो भाई हैं और उनके पास एक से पुश्तैनी हवेली है. ओके दो भाई हैं, उनके पास एक पुश्तैनी हवेली है और उन पे झगड़ा चल रहा है, तेरा है कि मेरा है, और अगर है दोनों का है तो कितना कितना है. ओके देयर इज अ डिस्प्यूटेड ओनरशिप. ओके तो व्हाट डज द इनकम टैक्स एक्ट से, अगर इस हाउस प्रॉपर्टी से किसी को रेंट आ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल से इस हाउस प्रॉपर्टी का रेंट बी के हाथ में आ रहा है, ओके तो जिसके हाथ में इस प्रॉपर्टी से इनकम आएगा, फिलहाल तो हम उसके हाथ में इस हाउस प्रॉपर्टी को टैक्सेबल कर देंगे, फिलहाल तो हम उसके हाथ में टैक्सेबल कर देंगे. पर अगर कोर्ट का जजमेंट, हम जब वेट करेंगे कोर्ट का जजमेंट, जब अगर इसके हाथ में नहीं इसके हाथ में आया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको बी को टैक्स का रिफंड दे देंगे और ए से टैक्स वसूल कर लेंगे. डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड? ओके यस. फर्दर से मिस्टर ए के पास लैंड है. नाउ टेल मी, वेकेंट प्लॉट हाउस प्रॉपर्टी है? नहीं है. ओके सो उस पे हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आएगा? नहीं. अब मिस्टर ए के पास क्या आया, मिस्टर बी आए और मिस्टर बी ने क्या बोला कि चलो हम इस पे बिल्डिंग बनाएंगे. ओके सो यह हाउस प्रॉपर्टी, बिल्डिंग का ओनर कौन हो गया, मिस्टर बी हो गया. लैंड का ओनर कौन है, मिस्टर ए है. डू यू अंडरस्टैंड? नाउ मिस्टर बी ने अगर वो रेंट पे दिया, मिस्टर बी ने अगर मिस्टर सी को रेंट पे दिया माय डियर स्टूडेंट्स, ओके अब सी अंडरस्टैंड, अब लैंड था, ओके अब लैंड था, वो लैंड मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दिया, ओके वो लैंड मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दिया. सो विल दिस इनकम अराइज अंडर हाउस प्रॉपर्टी? नो. मिस्टर बी ने वो लैंड लेके उस पर बिल्डिंग खड़ी करी, सो इज देयर हाउस प्रॉपर्टी? यस. अगर इस हाउस प्रॉपर्टी को उन्होंने आगे सेल किया तो विल इट बी कवर्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी? नो. बट अगर उन्होंने रेंट पे दिया किसी को तो ये रेंट जो है वो कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माय डियर स्टूडेंट्स. ओके फर्दर नेक्स्ट, असेसी ने क्या किया है, असेसी उस हाउस प्रॉपर्टी में खुद बिजनेस या प्रोफेशन नहीं करना चाहिए. Assessee should not be engaged in the business and profession on his own in that particular house property. Do you get it, my dear students? Okay, उसने खुद यहाँ पे बिजनेस और प्रोफेशन नहीं करना चाहिए. ओके पर अगर उसने किसी को रेंट पे दिया, ऐसे अंडरस्टैंड अगर एक हाउस प्रॉपर्टी है, उसका ओनर असेसी है, तो उसमें उसने बिजनेस या प्रोफेशन नहीं करना चाहिए. बट अगर असेसी ने किसी को रेंट पे दिया, मिस्टर बी को, ओके मिस्टर बी ने अगर यहाँ पे बिजनेस और प्रोफेशन किया तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंडीशन क्या है कि असेसी का बिजनेस प्रोफेशन नहीं होना चाहिए. अगर उसने किसी को रेंट पे दिया और सामने वाला बिजनेस प्रोफेशन करता है, देन इट विल बी कवर्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी. डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, okay, yes, okay. So 3 conditions: there must be a house property, assessee must be an owner, okay, and
assessee should not do his own business or profession. Now I have a few examples, my dear students. अगर कोई बिल्डिंग है, ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अगर कोई बिल्डिंग है, ओके, यस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स. अगर से ये पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी है और इसकी ओनर पीबीटी है, ओके, और अगर पीबीटी का खुद का ऑफिस है वहां पे, अगर मेरा खुद का ऑफिस उस बिल्डिंग में है, मैं खुद मेरा बिजनेस या प्रोफेशन उस बिल्डिंग से कर रही हूँ, देन विल इट बी टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी? नो, इट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी. ओके, ओके. अब अगर ये हाउस प्रॉपर्टी मैंने किसी को रेंट पे दी, मिस्टर बी को रेंट पे दी, then will this be covered under house property? Yes. Now my dear students, very careful. अगर एक बिल्डिंग है, वीर आप 2 सिस्टम से लॉग इन हो रहे हो. यस, अगर मेरी कोई हाउस प्रॉपर्टी है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरी कोई हाउस प्रॉपर्टी है, ओके, मेरी कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग पे माय डियर स्टूडेंट्स मैंने खुद का ऑफिस ओपन किया, तो will it be covered under house property? No, it will be covered under PGBP. But listen to me my dear students, listen to me. उस हाउस प्रॉपर्टी में जो बिजनेस करने वाली हूँ ना माय डियर स्टूडेंट्स, उस हाउस प्रॉपर्टी में जो बिजनेस करने वाली हूँ, अगर वो बिजनेस टैक्सेबल होगा तो मैं पीजीबीपी में जाऊंगी और उस पर टैक्सेस पे कर दूंगी. बट अगर वो प्रॉफिट्स एग्जेम्प्ट है, अगर वो प्रॉफिट्स एग्जेम्प्ट है, प्रॉफिट्स अगर एग्जेम्प्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि आई विल नॉट गो टू पीजीबीपी एंड पे टैक्सेस. I will not pay taxes there. Then I have to pay taxes under house property. मतलब टैक्स तो हमको चाहिए, उस हाउस प्रॉपर्टी पे तो हमको टैक्स चाहिए. अगर आपके पीजीबीपी ने प्रॉफिट्स एग्जाम कर लिए होंगे, अगर पीजीबीपी के अंडर आप टैक्सेस नहीं पे कर रहे होंगे, तो आपको उस हाउस प्रॉपर्टी पे एचपी के अंडर टैक्स पे करना पड़ेगा. डू यू अंडरस्टैंड? सो मीन्स वो जो कंडीशन है ना, असेसी शुड नॉट डू हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन, उसमें क्या होना चाहिए? उसमें एक एडिशन होना चाहिए. assessee should not do his own business and profession, number 1, and number 2, assessee is doing his own business and profession and earning exempt profits. मतलब पीजीपीपी में अगर उस पर टैक्स नहीं है तो उस हाउस प्रॉपर्टी को टैक्स कर दिया जाएगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. डू यू गेट इट माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ से मेरी कोई बिल्डिंग है, ओके, मेरी एक बड़ी सारी बिल्डिंग है, ओके, और मैंने क्या किया है, पहले फ्लोर पे मेरा ऑफिस कर दिया, फिर सेकंड फ्लोर को थिएटर पे रेंट पे दे दिया, और नेक्स्ट फ्लोर पे मैंने किसी को रूफटॉप रेस्टोरेंट बनाने को दे दिया. राइट. नाउ टेल मी विच विल बी कवर्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, अब फर्स्ट फ्लोर पे तो मेरा खुद का बिजनेस है, तो इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी पे, और अगले 2 फ्लोर्स मैंने अगर रेंट पे दिए हैं तो वो हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएंगे, अगर बेच दिए हैं, ओके, तो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा. Okay, further my dear students, next my dear students, अगर मैं पीबीटी हूँ, राइट, मेरे पास एक बिल्डिंग है, ओके, और अगर मैंने ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे से मैंने मेरा क्लासेस कर दिया, और फिर नेक्स्ट फ्लोर पे मैंने मेरा ऑफिस कर दिया, ओके, एंड देन थर्ड फ्लोर पे मैंने स्टाफ क्वार्टर्स कर दिए माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, एंड देन ऊपर किसी को रेंट पे दे दिया दोनों फ्लोर्स. सो व्हाट वुड बी द टैक्सेबिलिटी? What would be the taxability? नीचे के 2 फ्लोर्स तो मैंने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए लिए है, सो इट विल बी कवर्ड अंडर पीजीबीपी एंड नॉट अंडर हाउस प्रॉपर्टी. अब स्टाफ क्वार्टर्स माय डियर स्टूडेंट्स, स्टाफ क्वार्टर्स मैंने वहां पे क्यों दिया है? फॉर ईज ऑफ बिजनेस. तो वहां पे स्टाफ क्वार्टर्स मैंने मेरे एम्प्लॉयज को क्यों दिया है? ताकि मुझे बिजनेस करना वहां पे आसान होगा. Correct? So staff quarters will also be considered. The income from staff quarters will also be considered under PGBP. और ऊपर के 2 फ्लोर्स जो हमने रेंट पे किसी और को दिया है, it will be covered under house property, my dear students. Okay? Getting it? Is it interesting? Is it interesting? Okay, so section 22 has 3 conditions. There must be a house property, assessee must be a owner, and assessee must not do his own business or profession. Okay, house property मतलब building और building plus land appurtenant thereto. Okay, और assessee should not do his own business or profession. किसी और को रेंट पे दिया, वो बिजनेस और प्रोफेशन करता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. इट विल बी टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी. ओके, और अगर वो प्रॉफिट्स एग्जेम्प्ट होंगे, मतलब पीजीपीपी के अंडर उसमें टैक्स नहीं होगा, तब वो एचपी में टैक्सेबल होगा ही नहीं तो नहीं होगा. गेटिंग इट माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, further. Okay, so these are the 3 conditions with regards to section 22, my dear students. Okay, yes. Up next most important thing. Yes, property held as stock in trade.
ओके अब तक क्या होता था, जो बिल्डर्स हैं जो क्या करते थे, दे कंस्ट्रक्टेड अ प्रॉपर्टी, दे कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज एंड देन दे यूज्ड टू होल्ड दीज प्रॉपर्टीज माय डियर स्टूडेंट्स. ओके फिर इस प्रॉपर्टीज को क्या रखते थे, वेकेंट रखते थे, राइट. एंड देन दीज प्रॉपर्टीज वर नॉट यूटिलाइज्ड. ओके जब तक वो बिकते नहीं थे तब तक उस पर कोई इनकम नहीं आता था, उस पर कोई टैक्स पे नहीं करते थे ये बिल्डर्स. ओके अब क्या बोला गया, सेक्शन 23(5) इंसर्ट किया गया. सेक्शन 23(5) क्या बोलता है कि बिल्डर्स लिसन, अगर आपके पास ऐसी कोई हाउस प्रॉपर्टी होगी, मतलब क्या आपने जो ये कॉम्प्लेक्सेस बना के रख दिए हैं, राइट, अगर आपने उनको नहीं बेचे, ओके अगर आपने ऐसा बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट किए और अगर इफ यू डू नॉट सक्सीड टू सेल दोज फ्लैट्स, देन दोज फ्लैट्स विल बी कंसिडर्ड एज हाउस प्रॉपर्टी एंड टैक्सेबल अंडर योर हैंड्स. ओके अब बिल्डर क्या बोलता है, बिल्डर रोते इनकम टैक्स एक्ट के पास गया और बोलने लगा कि लिसन गवर्नमेंट, आपको क्या लगता है फ्लैट बेचना आज के ज़माने में इतना आसान है? पहले ही कोविड के चक्कर में लोगों के इनकम्स बंद हैं और सब घर पे बैठे हैं, और आप क्या चाहते हो कि लोग आए और हमारे पास हमसे हमारे फ्लैट्स खरीदे. ओके सो देन व्हाट डज द गवर्नमेंट से, हम आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझते हैं, हम समझते हैं कि आपको इमीडिएटली फ्लैट्स बेचना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम आपका 2 साल का वक्त देते हैं. हम आपको 2 साल का वक्त देते हैं. जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा उस साल के अंत से लेके हम आपको 2 साल का वक्त देते हैं. 2 साल में आपको वो हाउस प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी. अगर आप बेचने में असफल रहे तो हम क्या करेंगे, इट वुड बी ट्रीटेड एज स्टॉक हाउस प्रॉपर्टी इन योर हैंड्स, और आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा. डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? ओके यस, दिस इज द लॉजिक बिटवीन सेक्शन 23(5). देन ओनिंग अ हाउस प्रॉपर्टी, assessee must be a owner, बट कहीं पे ऐसे बोला है क्या कि दैट पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी मस्ट बी इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, कुछ बोला है क्या? कुछ भी नहीं बोला. ओके सो if income from house property, okay, if it is held outside India, will it be covered under house property? Absolutely yes. So if it should be a building, 3 conditions fulfill होने चाहिए, house property, ownership, and owner should not do business or profession in it. Okay, then चाहे वो in India हो चाहे outside India हो, it will be covered under house property. अब taxability क्या? If assessee is ROR, resident and ordinary resident, what happens with resident and ordinary resident? ROR और resident के सारा की सारा इनकम पे टैक्स आता है इंडिया में, और इंडियन इनकम अगर कुछ होगा तो सारा की सारा टैक्स होता है इंडिया में. ओके नाउ अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, अगर assessee ROR होगा तो वो चाहे प्रॉपर्टी इंडिया में हो चाहे प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया हो, एंटायर होल ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया. ठीक है, सवाल ही नहीं होता. इफ assessee is RNOR और NR, अब देखना पड़ेगा हमको प्रॉपर्टी किधर है. अगर प्रॉपर्टी इंडिया में होगी तो हमने देखा है दैट इनकम फ्रॉम कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, सेक्शन नंबर 9, सो इट बी डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया. और अगर अक्रूड और रिसीव्ड में से कुछ भी अगर इन इंडिया होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इन दैट केस हमने क्या देखा है, इट विल बी ट्रीटेड एज इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया. सो इफ प्रॉपर्टी इज इन इंडिया, टैक्सेबल इन इंडिया, प्रॉपर्टी नॉट इन इंडिया, नॉट टैक्सेबल इन इंडिया. क्लियर? ओके यस. अब यहाँ पे आरओआर का हमने क्या देखा, आरओआर और अगर प्रॉपर्टी इन इंडिया होगी, आरएनओआर और एनआर की, दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, बट इसका इनकम जो आएगा वो फॉरेन करेंसी में आएगा. दिस हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीज. तो कौन से रेट पे कन्वर्ट करेंगे, उनका क्या बोलना है, आपका साल कब खत्म हो रहा है, आपका पीवाई कौन सा है, 2021, मतलब 31 मार्च 2021 वुड बी द लास्ट डे ऑफ योर पीवाई, करेक्ट. सो इन दैट डेट, ऑन दैट डेट व्हाट इज द बाइंग रेट, वी हैव टू चेक कि आपका बाइंग रेट क्या है, उसके हिसाब से क्या कर देंगे, हम उसको टैक्सेबल कर देंगे. डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? ओके फर्दर, टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज माय डियर स्टूडेंट्स. ओके नाउ हाउस प्रॉपर्टीज आर ऑफ 3 टाइप्स. ओके नाउ बिफोर गोइंग टू दिस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. से एक इंसान है, ओके, से पीबीटी. ओके मेरे पास एक घर है. ओके मैं क्या कर सकती हूँ, मैं खुद रहती हूँ अगर, तो इट इज कवर्ड एज, इट इज नोन एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. अगर मैंने किसी को रेंट पे दिया तो इट इज नोन एज लेट आउट प्रॉपर्टी. ओके अगर मैंने उसको सेल किया तो हाउस प्रॉपर्टी में कवर नहीं होगा, अगर मैंने गिफ्ट दिया तो हाउस प्रॉपर्टी में कवर नहीं होगा, और अगर वो खाली पड़ा है तो उसका क्या होगा. अगर ऐसा कोई घर है मेरे पास जो खाली पड़ा है तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, लिसन,
लिसन पीपीटी, अगर आपके पास कोई घर है तो क्या आप उसको रेंट पे चढ़ा सकते हो? बिल्कुल यस। क्या आप उस पर इनकम अर्न कर सकते हो? बिल्कुल हाँ। अगर आप उस पर इनकम अर्न करते हो तो क्या होगा, उस पर आपके इनकम पे आप मुझे टैक्स, हमको टैक्स मिलेगा, बराबर है। आपको अगर इनकम नहीं चाहिए ना तो कोई बात नहीं, पर गवर्नमेंट बोलता है हमको टैक्स चाहिए, हमको टैक्स चाहिए। तो अगर कोई घर आप खाली छोड़ते हो वो आपकी प्रॉब्लम है। हम क्या करेंगे, हम उसको हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे और हम उस पर टैक्स कलेक्ट करेंगे। So it would be deemed to be let out property. Hence, house properties are of 3 types: self-occupied property, let out property, and deemed to be let out properties. Okay? अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि any two properties shall be treated as SOP. मतलब क्या, मतलब क्या, अगर आपके पास मानो 4 घर हैं, इन 4 घरों में से सी you have 4 houses, okay? These 4 houses, और इन 4 घरों में माय डियर स्टूडेंट्स आपने एक जो है वो रेंट पे दे दिया है तो वो लेट आउट प्रॉपर्टी है, कोई बात नहीं। फिर आपने 3 घर क्या किए हैं, खुद के रहने के लिए रखे हैं। ओके, अब मुझे बताओ क्या आप 3 घरों में एक साथ रह सकते हो? नहीं रह सकते। एक हाथ उधर, एक चेहरा उधर, एक पाँव उधर, ऐसा नहीं हो सकता है। एट अ टाइम यू कैन नॉट ऑक्यूपाई 3 हाउसेस, बराबर है ना। सो यू कैन मैक्सिमम ऑक्यूपाई 1 हाउस, राइट। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, चलो 2 घर हमने दिए आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, आप कभी इधर रहो, आप कभी इस घर में रहो, आप कभी उस घर में रहो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो तीसरा घर खाली पड़ा है ना, हम उस पर टैक्स ऐसे ही जाने नहीं देंगे, हम उसको डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मानेंगे। ओके, मीन्स आपके पास जितने भी खाली घर है, ओके, जितने भी, लिसन टू मी माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी आपके पास घर है उसमें जो आपने रेंट पे दिए है वो साइड में निकाल लो। ओके, बाकी बचे घरों में से 2 आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज रख सकते हो। रेस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। क्लियर? क्लियर एवरीवन? 100%? मतलब हमने क्या देखा, प्रॉपर्टीज कैन आइदर बी एसओपी, एलओपी और एसआईटी, स्टॉक इन ट्रेड। अगर एसओपी होगा तो चेक करो रेसिडेंस के लिए यूज किया है कि बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। अगर रेसिडेंस के लिए यूज किया है तो कितने, 2 एसओपीज ही हम अलाउड करेंगे, बाकी जो अभी रिमेनिंग एसओपीज रहेंगे विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टीज। ओके फाइन, ठीक है। और जो 2 घर हैं हमने रेसिडेंस के लिए चूज किए हैं, इट विल बी टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी, या डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी विल आल्सो बी टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी। जो आपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए रखा है, फिर हम चेक करेंगे उससे आपके प्रॉफिट्स टैक्सेबल है कि नॉट टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट है। अगर प्रॉफिट्स टैक्सेबल होंगे तो पीजीपीपी में आ जाएगा, एचपी में उसका कुछ लेना देना नहीं। बट अगर इस पे प्रॉफिट्स एग्जेम्प्ट है, अगर पीजीपीपी में इस पे टैक्स नहीं आता, तो हाउस प्रॉपर्टी के अंडर ये पर्टिकुलर बिल्डिंग, ये पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी वुड बी ट्रीटेड एज हाउस प्रॉपर्टी और उस पर टैक्स ले लिया जाएगा। क्लियर? अगर लेट आउट होगा, अगर आपने किसी को रेंट पे दिया होगा, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी। और अगर स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब बिल्डर्स के हाथ में, ओके, इन दैट केस उन्होंने क्या बोला है कि 2 साल तक हम उस पर कोई टैक्स नहीं लेंगे, हम उसका एनुअल वैल्यू नहीं लेंगे। व्हाई एनुअल वैल्यू? बिकॉज सेक्शन 22 क्या बोलता है कि हम हाउस प्रॉपर्टी का किस पे टैक्स करेंगे? एनुअल वैल्यू पे टैक्स करेंगे। एनुअल वैल्यू पे टैक्स करेंगे, मतलब माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग एक्चुअल रेंट आपका कितना आ रहा है हम वी विल कंसिडर, बट पूरा की पूरा हम उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इन शॉर्ट यहाँ पे डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टीज भी है, बराबर है। मतलब एक्चुअली वो लेट आउट नहीं है, बट हम मान रहे हैं कि आपने लेट आउट किया, क्यों? क्योंकि हमको टैक्स चाहिए। यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी है, ओके, जो आपने किसी उस पर आप इनकम नहीं अर्न करे, आप खुद रह रहे हो यहाँ पे, राइट। सो इन दीज 2 कैटेगरीज ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज, ओके, वी हैव टू फाइंड आउट नोशनल रेंट, ओके, एंड एक्चुअल रेंट इज रिसीव्ड इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, बराबर है। मतलब इस हेड में देयर इज एक्चुअल रेंट ऑल्सो, देयर इज नोशनल रेंट ऑल्सो। इसलिए उन्होंने क्या किया है, हम सीधा की सीधा उस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू निकालेंगे। हम देखेंगे आपको कितना रेंट मिल रहा है और गवर्नमेंट के हिसाब से कितना रेंट मिलना चाहिए, उसका असेसमेंट करेंगे और उस पर डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, कितने पे टैक्स लेना है, एंड दैट अमाउंट विल बी नोन एज एनुअल वैल्यू। सो इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, what is taxable? Annual value is taxable. Do you get it? And house property is one head, जहां पे क्या होता है, notional rent पे भी क्या होता है, notional rent को पे भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है। एक्चुअल रेंट पे तो लेते ही है, उसके साथ साथ नोशनल रेंट पे भी लेते हैं। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? क्लियर? ओके, यस। अब स्पेशल केसेस, व्हाट डज स्पेशल केसेस से, कि अगर आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है तो 2 ही हम लोग मानेंगे, बाकी सबको डीएलओपी ट्रीट करेंगे। ओके, यस। अब आगे
आई कम टू दिस चार्ट लेटर. ओके, लास्ट में हम लोग ये चार्ट देखेंगे. एक बार जीएवी कैलकुलेशन देख लें. फिर यहां पे नाउ नेक्स्ट स्पेशल केस, इफ प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर पार्ट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर. मतलब क्या, उनका क्या कहना है, इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि अगर पूरे साल में से अगर पीवाई 2022 के एक दिन भी, इवन फॉर अ सिंगल डे, अगर आपने वो हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट करी रहेगी, देन इट वुड बी ट्रीटेड एज लेट आउट प्रॉपर्टी. इट वुड बी ट्रीटेड एज लेट आउट प्रॉपर्टी. ओके, फिर अगर आप 6 महीने के लिए हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है, फिर जैसे 1 महीने के लिए लेट आउट एंड नथिंग डूइंग, अगर एक दिन भी आपने वो घर किसी को रेंट पे दिया होगा, हम उसको लेट आउट प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे. ओके, फिर नेक्स्ट केस, अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है और एरिया वाइज आपने उसको स्प्लिट किया है, एक फ्लोर लेट आउट, एक फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड. ओके, इन दैट केस हम एरिया वाइज उसका कैलकुलेशन करेंगे और आधा प्रॉपर्टी आपका ट्रीट हो जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड और आधा प्रॉपर्टी ट्रीट हो जाएगा लेट आउट प्रॉपर्टी. ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉम्पोजिट रेंट. कॉम्पोजिट रेंट माय डियर स्टूडेंट्स. यस, नाउ इन केस ऑफ कॉम्पोजिट रेंट, इन केस ऑफ कॉम्पोजिट रेंट, से फॉर एग्जाम्पल थिएटर. क्या आप थिएटर बेच सकते हो? ओके, उसका स्क्रीन निकाल के, उसकी कुर्सियां निकाल के, राइट, उसके फैसिलिटीज को हाउस प्रॉपर्टी मतलब थिएटर का जो बिल्डिंग है वो अलग कर दिया और उसके जो फैसिलिटीज है, फर्नीचर है, वो अलग कर दिया. इट्स पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल. देयर लेटिंग आउट इज इनसेपरेबल. पर अगर कोई घर है, फ्लैट है, ओके, उस पर फर्नीचर है, हमने तो वो बेड्स, वो मूवेबल फर्नीचर है, हमने उसका मूवेबल फर्नीचर निकाल दिया और ऐसा ही फ्लैट बेच दिया. कर सकते हैं? कर सकते हैं. So in case of letting out, sometimes letting out is separable, sometimes letting out is inseparable. If letting out is separable, my dear students, क्या बोला गया है? If letting out is separable, my dear students, तो क्या बोला गया है कि जो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है, ओके, यस, अगर हाउस प्रॉपर्टी प्लस अदर एसेट्स है, अगर हाउस प्रॉपर्टी प्लस अदर एसेट्स है, ओके, और अगर उस पर कॉम्पोजिट रेंट हम लोग लेते हैं, तो अगर इनसेपरेबल होगा तो चेक करो क्या इनका मेन बिजनेस ही है लोगों को ऐसे रेंट पे देना. अगर हाँ तो पीजीपीपी में, अगर ना तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा. बट इफ इट इज सेपरेबल तो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में और अदर एसेट्स का रेंट जाएगा, चेक करो मेन बिजनेस क्या है, अगर रेंट पे देने का है तो पीजीपीपी में, नहीं तो फिर आईओएस में. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? Yes or no? Yes or no? Okay? Yes. Further, my dear students. Advance year for future period. Advance rent for future period. Okay? Advance rent for future period मतलब क्या? हमने किसी को रेंट पे दिया है, इस 12 महीने का रेंट दे दिया, फिर वो क्या बोलते हैं कि देखो अगले मेरी एक बेटी है यूएसए में और मैं यूएसए जाने वाली हूँ. मैंने उसको बोला, तो मैंने उसको बोला कि अगले 6 महीने में यूएसए जाके मेरी बेटी के पास रहने वाली हूँ, ये रहा अगले 6 महीने का रेंट आपका. मतलब मैंने क्या किया, मैंने 6 महीने का रेंट एडवांस में दिया. सो नाउ कम्स टैक्सेबिलिटी. सो इस साल का टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त माय डियर स्टूडेंट्स, इस साल का टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त उस एडवांस रेंट का क्या होगा. अगर आपने सेक्शन 22 ठीक से देखा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने सेक्शन 22 ठीक से दिया होगा, व्हाट इज सेक्शन 22? चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. ओके, तो वहां पे क्या बोला गया है कि जो कुछ भी हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज होगा वो सब कुछ सेक्शन 22 हमको बताएगा. अब सेक्शन 22 क्या बोलता है कि आप एनुअल वैल्यू चार्ज करो. एनुअल वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स, एनुअल वैल्यू मतलब साल का वैल्यू, ईयर का वैल्यू. अब यहाँ पे साल भर का रेंट तो मैंने ले लिया और 6 महीने का मैंने एडवांस में लिया है, बट हियर अंडर सेक्शन 22 सिर्फ एनुअल वैल्यू विल बी टैक्सेबल. इसलिए अगर साल के ऊपर, एक साल के ऊपर मुझे कुछ भी अगर एडवांस में मिलता है, इट विल नॉट बी टैक्सेबल इन दिस ईयर, इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज ड्यू. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? Clear, my dear students? Okay. Now this is the master chart for calculation of income under the head house property. कैसे करते हैं? Find out gross annual value. इसमें से लेस हो जाएगा म्यूनिसिपल टैक्सेस. Then comes net annual value. इसमें से हमको मिलते हैं 2 डिडक्शंस under section 24. One standard deduction that is 30% of NAV and second interest on borrowed capital. Okay. Yes. So this is what? This is the main master chart for computation of income under the head house property.
ओके मतलब सबसे पहले हमको क्या कंप्यूट करना है, जीएवी। सबसे पहले हमको क्या कंप्यूट करना है, जीएवी। जीएवी कैलकुलेशन हैज बीन डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 23 माय डियर स्टूडेंट्स। जीएवी कैलकुलेशन हैज बीन डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 23 माय डियर स्टूडेंट्स। सेक्शन 23 क्या बोलता है, सेक्शन 23 क्या बोलता है कि आइदर प्रॉपर्टी एसओपी, एलओपी या डीएलओपी रहेगा। अगर एसओपी की प्रॉपर्टीज देखेंगे तो 2 प्रॉपर्टीज कैन बी ट्रीटेड एज एसओपी, 2 प्रॉपर्टीज कैन बी ट्रीटेड एज एसओपी, बाकी एलओपी एंड डीएलओपी। ओके अब एसओपी में बताओ मुझे, आपने किसी को रेंट पे दिया है क्या, नहीं। आपको कोई इनकम आई है क्या, नहीं। तो यहाँ पे जीएवी विल ऑलवेज बी निल। So GAV of house property, self-occupied property will be, my dear students, always it will be nil. Okay? Yes. अब आगे, अगर let out property है, अगर let out property है, my dear students, in that case what will happen? अगर let out property है तो section 23(1), okay, see SOP is covered under 23(2), LOP under 23(1) and DLOP under 23(4). ओके अब 23(1) क्या बोलता है कि यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 आ जाएगा। ओके एंड डीएलओपी होगा तो सिर्फ स्टेप 1 आएगा। नाउ व्हाट आर दीज स्टेप्स 1, 2 एंड 3? स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 बोलता है कि कंपेयर म्यूनिसिपल वैल्यूएशन एंड फेयर रेंट। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन मतलब क्या, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज जो टैक्स कलेक्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल घरपट्टी, ओके तो उस पर क्या करते हैं वो लोग, उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकालते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यूएशन एज पर म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटीज, राइट। और फेयर रेंट, फेयर रेंट मतलब ऐसी प्रॉपर्टी अगर आपकी एरिया में होगी तो उसको कितना रेंट मिलेगा, कंपेयर करो। म्यूनिसिपल रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर, और ये जो हायर है ना सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। मतलब क्या इन दोनों में से म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट, इनमें से जो दोनों, इसमें से जो हायर आएगा, ओके इसको कंपेयर कर दिया जाएगा स्टैंडर्ड रेंट से, और फिर इन दोनों अमाउंट्स में जो लोअर रहेगा that will be what, step 1 answer, reasonable rent under step 1. Municipal valuation of fair rent whichever is higher gives us the expected rent. गवर्नमेंट को क्या लगता है आपको कितना रेंट मिलना चाहिए, ओके और जब हम उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड रेंट इज अ मैक्सिमम रेंट गिवन इन द रेंट कंट्रोल एक्ट। इट इज यूजुअली गिवन इन द कैंटोनमेंट एरिया, ताकि मिलिट्री वाले लोग जब आपसे घर लेने के लिए आए तो उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ज़्यादा रेंट ना भरना पड़े, इसलिए स्टैंडर्ड रेंट है, बराबर है। सो दिस एक्सपेक्टेड रेंट को जब आप स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हो, लोअर ऑफ द 2 इज ऑलवेज नोन एज रीजनेबल रेंट। ओके एंड देन स्टेप 2। सो स्टेप 1 अगर हम देखेंगे तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये सारे क्या है, गवर्नमेंट के निकाले हुए फिगर्स है। मतलब स्टेप 1 क्या बोलता है कि गवर्नमेंट के हिसाब से हमको कितना रेंट मिलना चाहिए। स्टेप 2 क्या बोलता है कि आपको एक्चुअल रेंट कितना मिला, एक्चुअल रेंट लेस अनरियलाइज्ड रेंट, लेस अनरियलाइज्ड रेंट मतलब अगर कोई रेंट आपको मिला नहीं होगा, डूब गया होगा किसी, अगर वो मैंने किसी को रेंट पे दिया और एक दिन क्या किया, उसने सामान पैक करके गायब हो गया, अब मैं किसके पास जाऊँ रेंट मांगने, ओके तो ऐसा कोई अनरियलाइज्ड रेंट होगा। तो लेस वेकेंसी लॉस, खूब मेहनत करी, बोर्ड ले लेके घूम रही हूँ, हाउस ऑन रेंट, हाउस ऑन रेंट, हाउस ऑन रेंट, बट कोई आ ही नहीं रहा है रहने के लिए। ओके अब क्या हुआ, 12 महीने में 10 महीने तो कोई आया नहीं, 2 महीने आया, राइट। सो 10 महीने जो वो वेकेंट था, दैट इज नोन एज वेकेंसी लॉस, क्योंकि अगर वो वेकेंट है तो क्या उसका हमको कोई रेंट मिला है, नहीं, सो दैट इज अवर लॉस, राइट। सो स्टेप 2 में हमको क्या करना है, एक्चुअल रेंट लेस अनरियलाइज्ड रेंट लेस वेकेंसी लॉस निकालना है। ओके नाउ जीएवी मतलब क्या, माय डियर स्टूडेंट्स, जीएवी विल बी व्हाट, स्टेप 1 और स्टेप 2 विच एवर इज हायर। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। गवर्नमेंट क्या चाहता है, आपका रेंट कितना है और एक्चुअल रेंट कितना है। अब आपका मन में आएगा, आपके मन में सवाल आएगा कि मैम अगर हमने रेंट उस पर लिया ही नहीं है उतना, तो गवर्नमेंट कितना भी बोले हम उस पर टैक्स क्यों पे करेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला था, इवन नोशनल रेंट पे टैक्स कलेक्ट किया जाता है, नोशनल इनकम पे। मतलब नोशनल मतलब क्या, आपको एक्चुअली मिली होगी कि नहीं पता नहीं, गवर्नमेंट ने अगर सोच लिया कि मुझे इतने अमाउंट पे टैक्स चाहिए तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो स्टेप 1 के हिसाब से क्या मिलता है हमें, गवर्नमेंट क्या चाहती है, कितने पे हमको रेंट, कितना रेंट हमको मिला होगा, ओके और स्टेप 2 एक्चुअल रेंट हमको जो मिला है, 1 और 2 विच एवर इज हायर बिकम्स योर जीएवी। ओके अब आपको चेक करना है कि कई केसेस में स्टेप 3 इज एप्लीकेबल। मतलब क्या, गवर्नमेंट तो बोल रही है आपको इतना रेंट मिलना चाहिए, बट एक्चुअल रेंट हमको उससे कम मिला है, मतलब असर रो रहा है। अगर एक्चुअल रेंट आपको गवर्नमेंट वाले रेंट से कम मिला है, मीन स्टेप 2 इज लेसर देन स्टेप 1। असेसी रो रहा है, असेसी का एक्चुअल रेंट गवर्नमेंट रेंट से कम है, तो असेसी रो रहा है। और अगर वेकेंसी लॉस है,
2 conditions. Actual rent is less than reasonable rent and there is vacancy loss. Okay, vacancy loss, यहाँ पे vacancy loss में फिगर है. Okay, right. तो अगर ये 2 conditions fulfill होते हैं तो go to step 3. फिर step 3 क्या बोलता है? Listen to me very carefully. Step 3 क्या बोलता है? Check out what are the reasons. Check what are the reasons of loss. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने आपको बोला कि आपको 10,000 का रेंट मिलना चाहिए और एक्चुअली अगर आपको 8,000 का रेंट मिला है, तो ऐसा क्या हुआ कि आपका एक्चुअल रेंट गवर्नमेंट वाले रेंट से कम है. ओके, तो अब हम वो कैसे निकालेंगे? ऑन योर कैलकुलेटर्स ऑलवेज टेक द आंसर ऑफ स्टेप 1. रीजनेबल रेंट माइनस वेकेंसी लॉस जब आप करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, रीजनेबल रेंट माइनस वेकेंसी लॉस जब आप करोगे तो आपको आपका सवाल का जवाब मिलेगा. ओके, सो इफ रीजन इज ओनली ड्यू टू वेकेंसी, ओके, वेकेंसी के वजह से मेरी ऐसी हालत हुई है कि एक्चुअल रेंट इज लेस देन रीजनेबल रेंट, तो गवर्नमेंट क्या कहती है? हाँ, वेकेंसी के वजह से अगर ये हुआ था, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है. बराबर है ना? तूने तो रेंट पे भी डाला था, एडवर्टाइजमेंट भी करी थी, बट वो रेंट पे अगर जा नहीं पाया तो कोई बात नहीं. कोई बात नहीं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है. इसलिए तू जितना रेंट बोल रहा है ना उतना एक्चुअल रेंट हम लोग मान लेंगे. तू जितना रेंट बोल रहा है ना इसलिए उतना हम एक्चुअल रेंट मान लेंगे. कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम माय डियर एसएससी. ओके, बट इफ रीजंस आर वेकेंसी एंड अदर रीजंस माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, इन दैट केस व्हाट डज द गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट बोलता है हमने जो रेंट बोला है हमें उस पर ही टैक्स चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हम आपके वेकेंसी लॉस, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है. ओके, वो तो कोई रेंट पे रहने के लिए आया ही नहीं, तो आप भी क्या करोगे? इसलिए आपका जो वेकेंसी लॉस है सिर्फ उसका और उसका हम लोग डिडक्शन देंगे. ओके, और उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीवन? ओके, आई जस्ट गिव यू just 10 seconds. Just go through these steps once again. Okay, come on my dear students. Done my dear students? ओके, अब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 अगर आपके आंसर्स आ गए होंगे तो अगर एसओपी होगा तो वो निल विल बी टैक्सेबल. ओके, एलओपी में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हमको एनालाइज करना है और डीएलओबी में सिर्फ और सिर्फ स्टेप 1 एप्लीकेबल है. क्यों? बहुत लॉजिकल है ना, बहुत लॉजिकल है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली आपने किसी को रेंट पे दिया ही नहीं है, इसलिए जो गवर्नमेंट बोलता है उतना ही रेंट आएगा. स्टेप 2 तो एप्लीकेबल है ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल रेंट हमने उस पर कलेक्ट किया ही नहीं है, वो खाली घर पड़ा था, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको क्या किया, इनकम टैक्स एक्ट ने उसको डीएलओपी ट्रीट किया है. डू यू गेट इट माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, फर्दर. ओके, तो जीएवी का कैलकुलेशन हुआ. अब माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ बिगिंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. यस, हमने क्या देखा? अपना मास्टर चार्ट क्या है? व्हाट इज द मास्टर चार्ट? जीएवी लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस, राइट. सो इसमें से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने जीएवी तो देख लिया, जीएवी इज कवर्ड सेक्शन 23. अब म्यूनिसिपल टैक्सेस देखते हैं. म्यूनिसिपल टैक्सेस के डिडक्शन आपको कब मिलेंगे? ओके, ये जो हम माइनस करने मिल रहा है ना आपको, ये आपको कब माइनस करने मिलेगा? इफ इट इज पेड बाय ओनर, क्योंकि जीएवी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ओनर. तो उनका क्या कहना है? टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ओनर. फिर ओनर ने खर्चा किया होगा तो ही ना, ओनर के जेब से पैसे गए होंगे तो ही उसको डिडक्शन मिलेगा. अगर किसी और ने खर्चा किया है तो उसका बेनिफिट ओनर को क्यों? तो ओनर ने अगर उसको पे किया है तो उसको ओनर को बेनिफिट मिलेगा. अगर टेनेंट ने पे किया है तो उसका बेनिफिट, म्यूनिसिपल टैक्सेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा.
नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर पेएबल होगा तो वो कभी भी उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा. अगर पेड होगा, ओनली एंड ओनली इफ इट इज पेड, आपको उसका डिडक्शन मिलता है. डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? मतलब अगर पिछले साल का आपने इस साल पे किया तो पिछले साल तो आपको डिडक्शन मिला नहीं है, पर इस साल मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा. ओके, यस. अब अगले साल का अगर आपने पे किया है तो क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अभी तक ड्यू नहीं हुआ है. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, इस साल का जो आपको ड्यू हुआ था, आपने पे किया तो उसका डिडक्शन आपको मिलेगा ही. ओके, पर अगर इस साल का भी आपने पे नहीं किया, पेएबल करके प्रोविजन करके रख दिया है बैलेंस शीट में, ओके, तो क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा. क्लियर? ओके. फर्दर माय डियर स्टूडेंट्स, इफ इट इज पेड आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया भी पे किया रहेगा तो उन्होंने क्या बोला है, अगर फॉरेन लैंड पे अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी है तो वो टैक्सेबल होगा. मतलब अगर फॉरेन लैंड में अगर आपने म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किया तो उसका डिडक्शन भी मिलेगा. राइट. अगर आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस इन अमाउंट दिया है तो जितना अमाउंट दिया उतना लेस हो जाएगा. अगर इन परसेंटेज दिया है तो यू हैव टू टेक परसेंटेज ऑफ व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स, इट शुड बी अ परसेंटेज ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन. म्यूनिसिपल वैल्यूएशन का परसेंटेज कैलकुलेट करके हम उसका डिडक्शन ले लेंगे. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? क्लियर? ओके, यस. फर्दर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फिर हमने क्या देखा? जीएवी. जीएवी में से लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस हो जाते हैं और फिर क्या आता है? नेट एनुअल वैल्यू. अब इस नेट एनुअल वैल्यू में डिडक्शंस मिलते हैं. ओके, दिस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, मतलब हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शंस कौन से सेक्शंस में मिलते हैं? सेक्शन 24 में मिलता है. द फर्स्ट डिडक्शन इज स्टैंडर्ड डिडक्शन. वो कितना है? 30% ऑफ एनएवी. अब सबसे पहला लॉजिक समझिए, ऐसा क्यों? अगर आपने मास्टर चार्ट देखा होगा तो हमें डिडक्शन सिर्फ दो चीजों के लिए मिलता है. एक तो यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करने पे, और सेकेंड इंटरेस्ट का. राइट. अब एसएससी बोलता है एक घर पे हमको कितना खर्चा करना पड़ता है, कभी रिपेयर, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कितना सारा खर्चा करना पड़ता है. बट ये खर्चा फिर आपने तो कहीं पे कवर नहीं किया. तो व्हाट डज इनकम टैक्स से? हम आपके सारे खर्चों का हिसाब नहीं रखेंगे, हम आपको फ्लैट 30% डिडक्शन दे देते हैं. फिर चाहे आपका एक्सपेंस हो या चाहे आपका एक्सपेंस ना हो, चाहे आपका रिपेयर्स निकले या चाहे आपके रिपेयर्स ना निकले, हम आपके इंडिविजुअल एक्सपेंसेस को एंटरटेन नहीं करेंगे. हम फ्लैट 30% डिडक्शन आपको दे देंगे. क्लियर? ओके, यस, समझ में आया. फर्दर ओके, यस. Further, interest on borrowed capital, my dear students. Interest on borrowed capital. Now, interest on borrowed capital मतलब क्या? borrowed capital मतलब लोन. हमने अगर हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया और अगर हमने उस पर इंटरेस्ट पे किया तो क्या उसका डिडक्शन हमको मिलेगा? मिलेगा. बट हाउस प्रॉपर्टी आर ऑफ 3 टाइप्स, एसओपी, एलओपी, डीएलओपी. ओके, अगर आप देखते हो तो एसओपी का जीएवी हमने निल लिया है. ओके, म्यूनिसिपल टैक्सेस उसको मिलता नहीं है. राइट. तो उसका एनएवी भी निल हो जाएगा. राइट. उसको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलता है. मतलब व्हाट डज इनकम टैक्स एक्ट से? सी अंडरस्टैंड, एसएससी, आपके पास घर होना चाहिए आपका खुद का, बराबर है. अगर आपके पास इतना इनकम नहीं है कि आप खुद के उस इनकम पे घर खरीद सको तो हम आपको लोन देंगे. आप फिक्र मत करो. पर बहुत ज़रूरी है कि हर एसएससी का, हर इंडिविजुअल का एटलीस्ट खुद का घर तो हो अपने हिंदुस्तान में. इसलिए उन्होंने क्या बोला है? एसओपी का कुछ भी हम टैक्स भी नहीं करेंगे और इंटरेस्ट का उनको डिडक्शन भी देंगे. पर सिर्फ और आपके खुद का इनकम नहीं होगा तो आप लोन लो और उस इंटरेस्ट का डिडक्शन लो. पर आप लोन लो, पर आप खुद का घर तैयार करो. मेक अ प्रोविजन ऑफ योर ओन हाउस. डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है. अब लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अब क्या हुआ? एसओपी. अब एलओपी और डीएलओपी में हमने क्या देखा है कि वहां पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इन केस ऑफ एलओपी और स्टेप 1 इन केस ऑफ डीएलओपी. मतलब टैक्सेबल अमाउंट भी है. एनुअल वैल्यू इज टैक्सेबल. उस पे जो प्रॉपर्टी की वैल्यू रहेगी वो टैक्स हो जाएगी. ओके, मतलब क्या? एसओपी में जीएवी निल है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, फिर भी इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल रहा है. बट इन केस ऑफ एलओपी, डीएलओपी टैक्सेबल है और उनको डिडक्शन भी मिल रहा है. सो व्हाट डज इनकम टैक्स एक्ट से? सी, हमने आपको प्रोविजन क्या दी कि आप एसओपी में खुद लोन लो, इसका इंटरेस्ट का डिडक्शन लो, पर आप खुद का घर बनाओ. बट आप अगर हम लोगों के ज़रूरतमंद लोगों की बात कर रहे हैं. ओके, अब आपको घर अगर 20 करोड़ का चाहिए, ओके, और अगर आप 20 करोड़ का लोन लेते हो तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है.
हमारी जिम्मेदारी क्या है कि सब पूरे के पूरे पब्लिक को एक नजर से देखो। तो हमको क्या लगता है कि नॉर्मल एक 25-30 लाख का घर, ओके 20-25 लाख तो लगते ही है हर किसी को नॉमिनल घर करने के लिए, बराबर है। और उस पर उसको इंटरेस्ट अगर पे करना पड़ा तो उसके लिए हम लोग लिमिट डिसाइड कर देंगे। आपको अगर 20 करोड़ का घर बांधना है तो आप लो ना लोन, खुद की जेब से इंटरेस्ट दो, हम आपको क्यों डिडक्शन देंगे। हम आपको एक तो जीएवी घर का है इसलिए हाउस प्रॉपर्टी एसओपी है इसलिए हम उसका जीएवी भी नील कर रहे हैं, हम आप पे उस पर टैक्स भी नहीं ले रहे, हम आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन दे रहे हो। और आप 20 करोड़ का लोन लोगे, उस पर डिडक्शन लोगे और फिर लॉस आएगा, फिर लॉस आएगा, इस लॉस के आप दूसरे इनकम के साथ सेट ऑफ कर दोगे, मतलब आपका इनकम कम तो हमको मिलने वाला टैक्स कम। हमको चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए ही नहीं ऐसा प्रॉब्लम, इसलिए हम लिमिट डिसाइड कर लेंगे, हम लिमिट डिसाइड कर लेंगे। इफ योर प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट का डिडक्शन लेने के लिए हम आपका लिमिट डिसाइड कर लेंगे। हम देखेंगे कि आप ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करते हो क्या। फर्स्ट कंडीशन, लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1499, 1499 के बाद अगर आपने लोन लिया है, और लोन किसके लिए लिया है, सिर्फ परचेस और कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर आपने रिपेयर के लिए लोन लिया है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है, तो वो यहाँ पे कवर नहीं होगा। अगर आपने नया हाउस प्रॉपर्टी खड़ा करने के लिए, पर बाय करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर आपने लोन लिया है और अगर आप उस पर इंटरेस्ट पे करते हो तो हम आपको कंसिडर करेंगे। ओके, अब आपने 1499 के बाद लोन लिया और वादा किया हम कि हम नया प्रॉपर्टी खरीदेंगे या नया प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करेंगे लोन लेने के बाद। ओके, आप आपके वादे को भूल गए, पॉसिबल है, कई लोग भूल जाते हैं, बराबर है। तो इधर इनकम टैक्स एक्ट ने क्या बोला है, हम आपको भूलने नहीं देंगे, आपको 3 साल के अंदर, सॉरी आपको 3 साल नहीं, सॉरी आपको 5 इयर्स के अंदर, आपको 5 इयर्स के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, उसका कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यस, आपको मतलब हम 5 साल का वक्त देते हैं, 5 साल में आप ढूंढो नया घर, आपको कंस्ट्रक्शन करना है, 5 साल का वक्त दिया है हमने आपको कंस्ट्रक्शन फिनिश करना पड़ेगा। पर ये 5 साल कहां से चालू होगा, जिस साल आपने लोन लिया है ना, उस साल के अंत से लेके 5 साल का वक्त हम आपको देंगे। एंड ऑफ दैट पीवाई टिल दैट 5 years विल गिव यू। उस 5 साल में अगर आपने नहीं किया तो आपको जो भी डिडक्शन दिया जाएगा उसको रिवर्स किया जाएगा। सो व्हाट आर द कंडीशंस माय डियर स्टूडेंट्स, एसओपी को कंडीशन है ना, एलओपी डीएलओपी का कंडीशन है नहीं है। एसओपी को कंडीशन क्या है, 3 कंडीशंस, लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1499, loan taken for purchase or construction of property, and this purchase or construction should be complete within 5 years from the end of PY in which loan is taken. अगर आप ये conditions fulfill करते हो, then self occupied property का, my dear students, how much is the maximum limit? It is 2 lakh. अगर ये conditions fulfill नहीं किए, then the limit is 30,000. Do you get it? In case of LOP, in case of DLOP, there is no limit. अब आगे अब ये लोन कहां से लिया है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपने ये लोन कहां से लिया है, ये इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, अगर आपने लोन लिया है उसका सोर्स इंडिया है, अगर सोर्स इंडिया है मतलब अगर आपने इंडिया से ही लोन लिया है, लोन देने वाला इंडिया में, लोन लेने वाला इंडिया में, बराबर है ना। लोन जिसने दिया है उसको इंटरेस्ट मिलेगा और इंटरेस्ट जिसने दिया है, सी अंडरस्टैंड, लेंडर बोरोवर, लेंडर मतलब जिसने लोन दिया है, राइट, उसको तो इंटरेस्ट इनकम होने वाला है। ओके, इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस होने वाला है, तो ये इंटरेस्ट इनकम क्या है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा और इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो एचपी में लेस हो जाएगा। बराबर है। अब गवर्नमेंट को तो अपने टैक्स से मतलब है। गवर्नमेंट क्या बोलता है, अगर लेंडर इंडिया में है मतलब मुझसे क्या कर सकते हैं, आईओएस के अंडर टैक्स ले सकते हैं। बट अगर लेंडर आउटसाइड इंडिया है, ओके, तो हम उससे टैक्स देने कहाँ जाएंगे, उसको कहाँ ढूंढेंगे आउटसाइड इंडिया। इसलिए बोरोवर जब आप इंटरेस्ट पे करते हो कि नहीं, तो आप टीडीएस कट करके ही उनको इंटरेस्ट दो, आप टीडीएस डिडक्ट करके ही उसको इंटरेस्ट दो। और आपने अगर टीडीएस डिडक्ट करके खुद के जेब में रख दिया तो नहीं चलेगा, एक्सपेंसेस नहीं मिलेगा।
ओके तो आप उसको क्या करो, उसको टैक्स डिडक्ट करो और गवर्नमेंट को ड्यू डेट से पहले पे करो, तो आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी एक भी अगर नहीं किया, डिडक्ट किया नहीं किया, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा इंटरेस्ट का। अगर आपने डिडक्ट किया है पर गवर्नमेंट को ड्यू डेट के पहले पे नहीं किया, तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग? ओके फिर जिस साल आप उसको पे करोगे उस साल हम उसकी बात आपके साथ करेंगे। Getting it? Okay, so this is covered under section 25. Do you get it, my dear students? हाँ या ना? अब आगे सबसे मजेदार चीज, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट मतलब क्या? सी अगर मुझे एक घर बनाना है, मुझे पता है कि 2 साल बाद मेरी शादी होने वाली है, मुझे अपने खुद का एक घर चाहिए, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे घर बनाना है। ओके तो घर बनाना है, राइट। अभी मेरे पास एक लैंड है, राइट। अब मैंने उस पर लोन लिया, तो नाउ टेल मी, इज अ लैंड अ हाउस प्रॉपर्टी? नो, बराबर है। तो उसका कुछ टैक्सेबिलिटी नहीं आएगा, जो उस लोन पे मैं इंटरेस्ट पे कर रही हूँ उसका कुछ टैक्सेबिलिटी नहीं आएगा। पर ये लोन मैंने क्यों लिया है? हाउस प्रॉपर्टी बनाने के लिए लोन लिया है, बराबर है ना, राइट। सो एसएससी क्या बोलता है कि मैं लोन ले रही हूँ, राइट, और मैं यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी बनाने वाली हूँ, पर हाउस प्रॉपर्टी बनने के बाद का जो इंटरेस्ट है उसका तो डिडक्शन मिलेगा। व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट दैट आई एम पेइंग राइट नाउ? दिस 2 साल जब तक मेरा घर नहीं बन जाता, वो 2 साल का जो मैं इंटरेस्ट में बेयर कर रही हूँ उसका क्या होगा? वो तो मेरा वेस्ट ही गया ना, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी नहीं है अभी तक, तो मुझे उसका हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन नहीं मिलेगा, राइट। मैंने हाउस प्रॉपर्टी बनाने के लिए लोन लिया है, बराबर है ना। तो इस 2 साल का हम इंटरेस्ट क्या करेंगे? ऐसा जब एसएससी ने इनकम टैक्स एक्ट को बोला, तो इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है? डोंट वरी। आपका इंटेंशन क्या है? हाउस प्रॉपर्टी बनाने का इंटेंशन है, राइट। व्हाट इज योर इंटेंशन? क्रिएशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज योर इंटेंशन, करेक्ट। तो अगर आज आपको हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो इसका डिडक्शन नहीं मिल रहा ना, कोई बात नहीं, सब्र रखो, इंटरेस्ट पे करते रहो और हिसाब करते रहो कि आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है। ओके टोटल आप हिसाब करो कि आपने कितना टोटल इंटरेस्ट पे किया है। जिस दिन आपकी हाउस प्रॉपर्टी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा, उस साल से हम आपको क्या करेंगे? इस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट का डिडक्शन देंगे। डू यू अंडरस्टैंड? हम आपको इस प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का डिडक्शन देंगे। डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? यस और नो? ओके ना, ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड पहले कंसिडर कहां से कहां तक करना है, ये बहुत जरूरी है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम डेट ऑफ लोन, ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम डेट ऑफ लोन to 31st March immediately preceding the PY in which construction is completed. To 31st March immediately preceding the PY in which construction is completed, my dear students. और जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके पहले देखो कौन सा 31st मार्च है, दैट डेट और डेट ऑफ रीपेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर दैट विल बी द टू डेट। ओके फ्रॉम का डेट फिक्स है, डेट ऑफ लोन। आपने जब लोन लिया तब से तो इंटरेस्ट चालू हो गया, राइट। बट वो कहां से कहां तक प्री कंस्ट्रक्शन कहां से कहां तक माना जाएगा? आपका कंस्ट्रक्शन जब होगा, मतलब हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो गई, उसके पहले साल तक, उसका पहला 31 मार्च कौन सा है? वो डेट और डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर आपने पहले ही लोन रीपे कर दिया, अगर इंटरेस्ट का खर्चा ही नहीं है, तो हम उसको प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्यों माने? सो और डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन विच एवर इज अर्लियर। ओके ये टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। ओके इसका आपको डिडक्शन कब से मिलना स्टार्ट हो जाएगा? फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको कब मिलेगा? जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन हो जाए, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। तो एक साथ क्या पूरा की पूरा खर्चा आपको एक साथ एक ही साल में मिल जाएगा? नहीं, आपको 5 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। मतलब पूरा की पूरा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आपको 5 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, हर साल 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5। क्लियर एवरीवन?
ओके अब आपका सवाल, नेक्स्ट सवाल, मैम आपने बोला कि डीएलओपी एलओपी का तो कोई लिमिट नहीं है, तो कितना भी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट रहा, करंट पीरियड इंटरेस्ट रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एसओपी में तो लिमिट है 2 लाख और 30,000, राइट, कंडीशंस फुलफिल किए तो 2 लाख, नहीं फुलफिल किए तो 30,000, फिर क्या करेंगे, दिस लिमिट ऑफ 2,30,000 इज एप्लीकेबल टू एंटायर इंटरेस्ट अमाउंट, मतलब करंट ईयर्स इंटरेस्ट प्लस प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, दोनों को मिला के आपको लिमिट 2 लाख या 30,000 विच एवर इज एप्लीकेबल एज द केस में बी. ओके, डू यू गेट इट माई डियर स्टूडेंट्स? डू यू गेट इट? ओके, यस. सो दिस इज ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अब चलते हैं उस मास्टर चार्ट पे जो मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर आपकी प्रॉपर्टी एसओपी है तो जीएवी निल, म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन नहीं मिलता, एनएवी निल, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा ही नहीं. अगर एनएवी निल है तो 30% ऑफ एनएवी विल ऑलवेज बी निल, बराबर है. सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का आपको डिडक्शन मिलता है, वो कितना है, लिमिटेड है, 2 लाख और 30,000 एज द केस में भी. अगर आप एलओपी डीएलओपी हो तो स्टेप 1, 2, 3 इन केस ऑफ एलओपी, राइट, बाकी सारा डिडक्शंस मिल जाएगा. यहाँ पे कोई लिमिट है इंटरेस्ट के लिए? नहीं. सेम विद डीएलओपी, स्टेप 1, ओके, और कोई लिमिट है? बिल्कुल भी नहीं है. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, यस. अब मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगी, ये रहा वो चार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग. अब मैम ने तो आपको बोल दिया कि अगर आपके पास 3 घर है तो तीनों खाली है, तो इसमें से 2 आप एसओपी रखोगे, एक आप डीएलओपी मानोगे. मैम ठीक है, ये समझ तो आ गया. अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा एसओपी रखेंगे, कौन सा डीएलओपी रखेंगे. नाउ इन दिस केस यू हैव टू मेक 3 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, और उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना पड़ेगा. फिर जो आपको सबसे बेनिफिशियल है उसको आप चूज करोगे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ओके, से आई हैव 3 हाउसेज, S1, S2 एंड S3, और मैं क्या डिसाइड करती हूँ, इन दोनों को एसओपी, S1 S2 को एसओपी, मतलब ऑटोमेटिकली S3 बिकम्स माई डीएलओपी. फिर क्या हुआ, अगर ये निल है तो यहाँ पे ये एसओपी है तो निल निल हो जाएगा, ये निल हो जाएगा, ये भी निल हो गया, ये निल हो गया, और यहाँ पे ये इंटरेस्ट का लिमिट आ जाएगा. ओके, यस, फाइन. अब आगे इन केस ऑफ डीएलओपी आई विल हैव स्टेप 1, फिर सारा कैलकुलेशन करूंगी, ये अनलिमिटेड हो जाएगा. कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ओके, यस. अब यहाँ पे भी सेम, अगर S2 और S3 एसओपी ट्रीट किया है तो इन दोनों का लिमिट आ जाएगा 2 लाख और 30,000, राइट. और यहाँ पे अगर S1 डीएलओपी है तो ये अनलिमिटेड हो जाएगा. कैलकुलेशन करो. फिर कॉम्बिनेशन क्या होगा, S1 और S3 एसओपी और S2 डीएलओपी, ऐसे 3 कॉम्बिनेशंस करो. फाइंड आउट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और जो सबसे लेस रहेगा वो हम लेंगे, क्योंकि हम असेसी है ना, ये कैलकुलेशन हम असेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, बराबर है ना. तो असेसी तो क्या चाहेगा कि कम से कम इनकम हो ताकि कम से कम टैक्स आ जाए, बराबर है. सो हम वो ऑप्शन चूज करेंगे जिसका इनकम सबसे कम आएगा. इट विल बी ट्रीटेड एज कॉम्बिनेशन ऑन विच वी हैव टू पे टैक्स अंडर हाउस प्रॉपर्टी. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, अब कुछ मिसलेनियस एंड की बातें हैं वो भी हम खत्म कर देते हैं. ओके, यस. अब हमने मेन जो है वो तो पूरा देख लिया. अब आगे, यस, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट्स और अरियर्स ऑफ रेंट. व्हाट डज दिस मीन? अगर से फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी को हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दी, ओके, तो मैं बोल रही हूँ रेंट 24,000 है, ओके, 24,000 तो मिनिमम मुझे चाहिए, और वो टेनेंट बोल रहा है नहीं 18,000 ही है, 24,000 आप बहुत ज़्यादा मांग रहे हो, आप लूट रहे हो, इसलिए उसने मेरे पे कोर्ट केस किया. अगर उसने मेरे पे कोर्ट केस किया, ओके, और कोर्ट ने फाइनली बाद में डिसाइड किया नहीं, पीयूषा मैम जो बोल रही थी 24,000 का ही रेंट आना चाहिए, 18,000 तो बहुत कम है, तो असेसी को क्या करना पड़ेगा, टेनेंट को क्या करना पड़ेगा, टेनेंट को मुझे और 6,000 हर महीने के लिए फिर से और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, बराबर है. तो इस कौन से साल में मिलेगा, ये जिस साल में केस जीतूंगी, बराबर है. सो हियर दिस इज नोन एज अरियर्स ऑफ रेंट. ओके, अनरियलाइज्ड रेंट. से मेरा एक स्टूडेंट था, ओके, वो पढ़ने के लिए इधर आया था, तो मैंने उसको क्या किया, तू मेरा स्टूडेंट है, ओके, तो यू ऑलवेज हैव सॉफ्ट कॉर्नर्स टू योर स्टूडेंट्स. तो मैंने उसको क्या बोला कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक घर खाली है, तू बाहर रेंट पे जगह क्यों देख रहा है, तो उसी हाउस प्रॉपर्टी में रह जा और तू मुझे रेंट दे. और उस स्टूडेंट ने क्या किया, एहसान फरामोश था, ओके, 3 महीने का रेंट न पे करते हुए गायब हो गया.
चला गया अपने घर वापस। ओके तो ठीक है, फिर बाद में उसको रियलाइज हुआ, वो कंपनी सेक्रेटरी बना, फिर बाद में उसको रियलाइज हुआ कि अरे मैंने मैम के 3 महीने के रेंट क्या कर दिया था, तभी पे नहीं किया था, अब मेरा इनकम चालू हो गया है, मुझे ये लायबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी। इसलिए वो क्या करता है, 3 महीने का रेंट पे करने के लिए मेरे पास आता है। दिस इज नथिंग बट रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। डू यू अंडरस्टैंड? सो इन केस ऑफ रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, अरियर्स ऑफ रेंट, क्या हमको पता है कि ऐसा कोई करने वाला है अपने साथ? क्या अपने को सपना पड़ता है? नहीं। क्या अपने को आर वी गोइंग टू ड्रीम दैट कि मैं ये केस जीत ली हूँ, राइट? मैं ये केस जीतने वाली हूँ और मुझे रेंट आने वाला है? नहीं पता ना हमको। सो इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। जिस साल आपको पैसा मिलेगा उस साल वो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके तो उसमें से क्या आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर उस साल में टैक्सेबल होता तो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता, इस साल में टैक्सेबल हो रहा है तो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अब आएगा मजा। अब उन्होंने क्या बोला था, अब ठीक है, उन्होंने क्या बोला, टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। ओके तो 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। ओके ना, इस अरियर्स ऑफ रेंट में से जो पैसा मिलता है ना, इसमें से रिलीफ मिलता है। रिलीफ मतलब क्या? अब कितना मिला है मुझे? 1 लाख रुपए मिला है। ओके और 1,50,000 रुपए मिला है इस साल मिला है, इसलिए इस साल का स्लैब रेट क्या है? अप टू 2,50,000। अगर तब मिला होता तो स्लैब रेट क्या था? 2 लाख था, टैक्स रेट कम था। ओके तो हम क्या करेंगे, आज के हिसाब से टैक्स कितना आता है कंप्यूट करेंगे, और अगर तब टैक्स पे किया होता तो कितना आता है कंप्यूट करेंगे, और जो डिफरेंस रहेगा वो आपको टैक्स लायबिलिटी में से लेस हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अनजस्टिस ऑन योर पार्ट। इसलिए क्या करेंगे वो लोग, टैक्स लायबिलिटी में वो रिलीफ देंगे, रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). गेटिंग इट? ओके आगे अगर आप जॉइंट ओनर्स हो, ए एंड बी जॉइंट ओनर है, ए 40% बी 60%, तो क्या हो जाएगा, जीएवी पहले निकालेंगे, फिर इसके हाथ में 40% जीएवी आ जाएगा, इसके हाथ में 60% जीएवी आएगा। जो भी म्यूनिसिपल टैक्सेस दोनों में से जिसने एक्चुअली पे किया है उसको उसका डिडक्शन मिल जाएगा, 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। नाउ इफ दैट पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर एसओपी पर्पसेस, ओके तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का लिमिट है 2 लाख या 30,000। ओके अब इनको जो लिमिट है उसमें भी शेयरिंग करना पड़ेगा क्या? नो, लिमिट इज असेसी वाइज नॉट प्रॉपर्टी वाइज। हर असेसी को क्या होगा, हर बार फ्रेश लिमिट दिया जाएगा 2 लाख या 30,000। गेटिंग इट एवरीवन? ओके एंड देन द लास्ट कॉन्सेप्ट इन द हाउस प्रॉपर्टी इज दैट ऑफ डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर कॉन्सेप्ट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 27। सेक्शन 27 क्या बोलता है कि अगर ट्रांसफर टू स्पाउस, अगर आपने आपके हाउस प्रॉपर्टी स्पाउस को ट्रांसफर करी, वो भी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए, ओके तो ट्रांसफरर के हाथ में ही उसको टैक्सेबल किया जाएगा। ओके अगर आपने डिवोर्स लिया है और अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट के अंडर अगर आपको ट्रांसफर हुआ है तो फिर उसका ट्रांसफर मतलब स्पाउस के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। ट्रांसफर टू अ माइनर चाइल्ड, आपने क्या किया, आपके बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी और उससे इनकम आ रहा है, वो बेटे के हाथ में टैक्सेबल आ रहा है। ओके तो वो माइनर होगा, तो वहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन रहेगा तो आपके ही हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, माइनर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। एक्सेप्शन माइनर मैरिड डॉटर। अगर हाउस बिल्डिंग स्कीम में अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी के आप मेंबर हो, तो और अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी ने डिसाइड किया कि हमने क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक हाउसिंग स्कीम करेंगे, तो बिकॉज यू आर अ मेंबर, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी क्या बोलती है, हम क्या करेंगे, उसमें से एक फ्लैट आपको दे देंगे। ओके तो अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट हो रहा है, इन दैट केस कोऑपरेटिव सोसाइटी को ओनर मानेंगे कि हमको ओनर मानेंगे, हमको ओनर मानेंगे और हमारे हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा। Okay, now this is important. Part performance of contract, power of attorney or unrealized sale of property or transaction covered under section 53A of Transfer of Property Act. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। उनका क्या कहना है, सी ए और बी फ्रेंड्स है। ए ने क्या डिसाइड किया, मेरे पास एक घर है, तुझे चाहिए, तू मेरा ही घर खरीदे, क्यों यहाँ ढूंढ रहा है। तो ए ने बी को घर बेचा, दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, बी ने पैसा दे दिया, ए ने पोजेशन दे दिया, बट अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कंप्लीट हुआ। रजिस्ट्रेशन नहीं कंप्लीट हुआ तो स्टैम्प ड्यूटी नहीं आएगा, बराबर है, और सेल वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज कंप्लीट, राइट। हम यहाँ पे हमने क्या देखा है कि जब ओनरशिप अब ए रहेगा कि बी रहेगा, उसके हाथ में उसका टैक्सेबिलिटी आएगा, बराबर है ना। अब ए हो या बी हो, ओनर हम कैसे मानेंगे, उनका क्या कहना है, अगर आपने सेल डीड कंप्लीट नहीं किया बट बाकी सब कुछ कंप्लीट है, कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में है, अंडरस्टैंडिंग हो गया है, आपने पोजेशन दे दिया है, राइट, आपने पोजेशन दे दिया है सामने वाले को, सामने वाला एंजॉय कर रहा है प्रॉपर्टी, इन दैट केस जो प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है उसको हम ओनर मानेंगे, बी विल बी कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी।
ओके अगर कोई इम्पार्टेबल स्टेट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल HUF की होती है ना, पुराने ज़माने में जिनके बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज थे, जिनका पुश्तैनी बहुत बड़ा फैमिली का ऐसा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज जिसके पास बहुत ज़्यादा है, उन्होंने देखा होगा कि मंदिरें भी होती है, कई फैमिलीज़ के मंदिर होते हैं। ओके क्या हम उस मंदिर को कभी, टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हम उस मंदिर को कभी पार्टीशन कर सकते हैं? मंदिर का नहीं, इट विल वी कंसिडर इट एज अ टैबू, राइट, बराबर है, क्योंकि हम अपना धर्म अपने को वो मानने नहीं देता। फिर अपने को मन में वहम बैठ जाता है कि अब मेरे साथ क्या होगा, अब मुझे नुकसान होगा, अब मेरे घर में कुछ बुरा होगा, ये होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, घर का मंदिर का कभी भी पार्टीशन नहीं करते। उसको कहा जाता है इम्पार्टेबल स्टेट। अगर ऐसी कोई स्टेट हो जिसका हम पार्टीशन नहीं कर सकते, उसको इम्पार्टेबल स्टेट कहा जाता है। ओके इसको टैक्सेबल किसके हाथ में किया जाएगा? जो होल्डर है उसके हाथ में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म लीज में एंटर होते हो, एनी लीज फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years or more, 2 years or more, then it will be taxable in the hands of the person, जिसको आपने वो घर दिया है उसके हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा, एक्सेप्शन अप टू 11 months। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? क्लियर? Okay, so tell me, how do you find house property? Easy? Nice? Yes, my dear students? This is all about the journey. This is the entire journey of house property, my dear students. Okay? Yes.